Good afternoon, friends. Important video on one of the optional facility made available from October 1, 2024. Invoice Management System. What is this invoice management system? In a simplistic manner, whatever invoice raised by the supplier, which is being saved or filed through GSTR1 or invoice furnishing facility by QRMP or GSTR1A would be available on this IMS dashboard for the recipient for taking three important actions, either to accept those invoices or reject those invoices or keep it pending. And the last one, when you are taking no action. Why it is importantly required? This is required to cross-check by the recipient invoice raised by the supplier is correct or not. If it is correct and accepted, then corresponding credit will flow to GSTR2B of the recipient and gets auto-populated in a GSTR3B. Invoice Management System. इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है, जो सप्लायर अपनी इनवॉइस रेज करता है, सेव कर देता है या फाइल करता है विद GSTR1 और GSTR1A और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो रिसिपिएंट के लिए नाउ अवेलेबल होगा कि IMS डैशबोर्ड पे आप उस इनवॉइस को देख पाएंगे. बीइंग रिसिपिएंट, आइदर आपको उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो आपकी इनवॉइस है आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग छोड़ देंगे. एंड चौथा, मान लीजिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये क्यों? इसकी वजह ये है कि जो भी इनवॉइस सप्लायर ने रेज की, जिस पे एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट आप क्रेडिट ले रहे हैं, वो करेक्ट है या नहीं है. जिससे आपने जो क्रेडिट ली वो करेक्टली आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट होगी और वहां से आपके GSTR3B में जाएगी, यानी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन हो जाएगा. मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इस IMS के, जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. सो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड किए हैं, पहले वो सेव मोड में होते हैं. आपको मालूम है, जब GSTR1 सप्लायर भर रहा होता है, वो इनवॉइसेस को सेव करता चलता है, और जब 1 भरता है तो वो फाइल हो जाते हैं. तो वो इनवॉइस बायर को IMS प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे. सो efficiently address invoice correction and amendment. If supplier is raising invoice and that invoice is having some mistake, you can always, being recipient, reject such invoice for the needful correction to be done by the supplier. 3 actions need to be taken. Such invoices, either you need to accept as a recipient, if it is your invoice, correct invoice, so that correct ITC is being availed through 3B, which is getting auto-populated in your GSTR2B as well, or it may be rejected also. We are going to discuss each of the component in later part of my presentation. And how it is going to help us? It is going to help us in reconciling the ITC. We have seen a lot of notices only on reconciliation part, that ITC is not being reconciled. So that kind of, litigation will go away in time to come. So what is this IMS? We are going to discuss at length. Now this facility is optional. It is being said that starting from 1st October 2024, but any action to be taken by the recipient, that IMS window gets open on 14th of October 2024. Now having said that, What is IMS? ये हम सबके लिए समझना जरूरी है
कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। ये एक तरह का डैशबोर्ड होगा जीएसटीएन पोर्टल पे। तो इस डैशबोर्ड में क्या होगा, जब सप्लायर अपनी कोई इनवॉइस को सेव करेगा जो उसने आपको रेज की है, या जब वो अपना GSTR1 फाइल कर रहा है, 1A फाइल कर रहा है, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के जरिए अपलोड कर रहा है B2B इनवॉइसेस, तो रिसिपिएंट को वो डैशबोर्ड पे दिखेगी, रिसिपिएंट को, कि आपके सप्लायर ने आपको ये इनवॉइस रेज की है। सो आपके जब डैशबोर्ड पे वो दिखेगी, तब आप क्या करेंगे, बीइंग रिसिपिएंट, you have 4 important action. What are the 4 important action? If that invoice belongs to you and you find this invoice is correct, then you can accept such invoice. Once you accept such invoice, it will go to your GSTR2B as a accepted eligible credit invoice and then getting auto-populated in GSTR3B for that tax period. Second is reject. You are rejecting the invoice for the reason it is not related with you, or you find some mistake is there in the invoice. That is the reason you can't accept. So what is the needful action you will take? Reject such invoice. Once you reject, it will go to your GSTR2B as rejected one. Third is pending. So what is pending? Invoice is correct, but you can't avail credit in that particular tax period. Maybe a reason that invoice is raised on 30th September. Let's understand for understanding purpose. 30th September को इनवॉइस रेज हुई, पर आपको गुड्स मिला 5 अक्टूबर को, तो क्वाइट ऑब्वियस है आपको इनवॉइस दिखेगी, इनवॉइस करेक्ट है, बट क्रेडिट आपको मिलेगा अक्टूबर मंथ में जब आपने गुड्स रिसीव किए, तो आप इसको पेंडिंग छोड़ देंगे। सो एक्शन इज पेंडिंग। अगर आपने पेंडिंग किया तो ये आपके 2B में भी नहीं जाएगा और आपके 3B में भी नहीं जाएगा, यानी जब सब्सिक्वेंट पीरियड में आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तब ये आपके 2B में जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट आपके 3B में फ्लो करेगी। सो एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। और चौथा एक्शन है कि आप कोई एक्शन ना लें, यू कीप इट नो एक्शन। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, नाइदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट नॉर पेंडिंग, तो क्या होगा, 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो 2B आपका जनरेट होता है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा और सारी ट्रांजैक्शन को डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट 2B जो आप क्रेडिट अवेल करते हैं 3B में, जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं वो सारा प्रोसेस एज सच आप फॉलो करेंगे। सो यानी आपके लिए चौथा एक्शन जो नो एक्शन है, यानी नाइदर आपने एक्सेप्ट किया, नॉर रिजेक्ट किया, नॉर पेंडिंग किया, तो वो डीम एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और आपका 2B 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो ऑटो पॉपुलेट होता है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आप अपना ट्रांजेक्शन चेक कर लीजिए, 3B में जो एलिजिबल क्रेडिट है, टेबल 4A5 ऑफ GSTR 3B वो क्रेडिट ले लीजिए, जितना आपको रिवर्स करना है टेबल 4B1 उसको आप रिवर्स कर दीजिए, जितना क्रेडिट अभी आपको रिवर्स करना है बट आप रिक्लेम करेंगे टेबल 4B2। सो वो सारी चीजें जो आप आज की डेट में फॉलो करते हैं वो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट विच वी मस्ट नो, एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेड करके 2B में एलिजिबल क्रेडिट, रिजेक्ट किया तो रिजेक्टेड करके 2B में जाएगा जो क्रेडिट में फ्लो नहीं करेगा, पेंडिंग किया तो पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पीरियड IMS पे दिखता रहेगा जब तक कि आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना कर दें। लेकिन अगर पेंडिंग किया है तो आपको क्रेडिट तो लेनी है, यू नीड टू टेक क्रेडिट, सो यू हैव टू बियर इन योर माइंड द टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एंड टाइम लिमिट इज 30th November of succeeding financial year, which is related to the invoice or debit note for a particular financial year, or due date of furnishing annual return, whichever is earlier.
So you must take action, either accept or reject, if you have kept certain invoices as pending, so that you are taking action and availing credit within the time limit under section 16 subsection 4. This is what you need to keep in your mind. And pending action cannot be taken for specified transaction. So either you have to accept or reject, or no action which is later on deemed accepted. This is the three options. You can't take pending action on these three transactions. First, if original credit note raised by the supplier, then either you need to accept or reject. There's no pending. Second, any upward or downward. So credit note, let's say raised for 100 rupees, and later on it is being increased to, let's say, 110, upward or downward, maybe 90. In that case, pending action cannot be taken. Or any kind of downward amendment of any invoice or debit note, pending action will not be available to you. Either you need to accept or reject. This is what being stated for IMS. Now, going further, the 2B is important, right? For recipient to avail credit. So there are two things which you can, perceive from recipient perspective. Either you have taken action accept, reject, or pending, or you have not taken any action. Then it is deemed accepted. So your 2B, you know that it gets generated on 14th of succeeding month. Now, it is being generated on the basis of invoice records filed by the supplier in a GSTR1 or through 1A or through invoice furnishing facility. So whatever, invoice which is being saved and filed, that would be available to you as a recipient. And on those invoices, on filing of 1A or invoice furnishing facility, your 2B gets generated, which is draft 2B on 14th of next month. This is what by default we find that. Now you'd be taking the action. Depending on the action, accept would be accepted invoice, reject would be rejected invoice, pending would be kept pending, will not flow to 2B, and kept pending till the time action taken. But bear in your mind, you must take action before the time limit as per section 16 subsection 4. So if any action is not taken for that particular month, it will move to the subsequent month. This is what generation of 2B. Now, having said that, what will not go to IMS? Quite obvious. So we must know what is not available on IMS for any action. So any reverse charge transaction, invoice raised by registered supplier but subject to RCM, or self-invoice which is generated by recipient in case of RCM transaction by unregistered supplier. दो ट्रांजेक्शन आपको मालूम है, रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4. अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है पर सब्जेक्ट टू आरसीएम है, तो वो तो इनवॉइस रेज करेगा, टिक कर देगा सब्जेक्ट टू आरसीएम, अपना GSTR1 भी फाइल करेगा, लेकिन वैसे इनवॉइस आपके आईएमएस पे नहीं आएंगे. जब आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हैं तो आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F. वो इनवॉइस भी आपकी आईएमएस पे नहीं आएगी, यानी आपको कोई एक्शन नहीं लेना. दूसरा, अगर कोई इनवॉइस टाइम बार्ड हो गई है बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, so यानी जो इनवॉइस आपने पेंडिंग रख छोड़ी थी और आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो जिस दिन वो टाइम लिमिट होगी वो आईएमएस से बाहर चली जाएगी, आपको वो आईएमएस पे दिखेगी भी नहीं. सो यानी आपको एक्शन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड
अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे लेना पड़ेगा। कोई अगर इनएलिजिबल आईटीसी है बिकॉज पीओएस, आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप दिल्ली रजिस्टर्ड है पर आप मुंबई गए और होटल में ठहरे, तो होटल ने आपको बिल रेज किया इंट्रा स्टेट का सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र एसजीएसटी, वो आपके क्रेडिट में फ्लो ही नहीं करेगा, तो आपको वो आईएमएस पे दिखेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट द मीनिंग कमिंग आउट। जीएसटीआर 5 जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है उसकी कोई इनवॉइस नहीं आएगी। जीएसटीआर 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस रेज होती है वो भी आईएमएस पे नहीं आएगी। आइस गेट जहां आप इंपोर्ट करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, वो भी आपकी आईएमएस पे नहीं आएगी। और रूल 37A जहां पे आप क्रेडिट रिवर्स करते हैं बीइंग रिसिपिएंट बिकॉज यू फेल्स टू पे विद इन 180 डेज, आपको याद आ रहा होगा, तो ऐसी कोई इनवॉइस नहीं होती और वो ट्रांजेक्शन भी आपका आईएमएस पे नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट इट विल नॉट गो टू आईएमएस। अब मैंने ये आपसे कह दिया, अब एक बार हम इससे फिर से एक रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था लेकिन फिर से आप अपने आप को रिफ्रेश करें। जो डॉक्यूमेंट आईएमएस पे आपको दिखेंगे वो सप्लायर की इनवॉइस होगी। आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? अगर वो आपकी इनवॉइस है, इफ इट इज योर इनवॉइस एंड करेक्ट इनवॉइस, यू विल से एक्सेप्ट। फॉर आईटीसी अवेलेबिलिटी that will go auto-populated in accepted invoice in your 2B and then in your GSTR 3B. Rejected. Some invoices you find it is related to you, but there is a mistake in the invoice. Particulars furnished by the supplier. You may reject the same. Or maybe that invoice is not belonging to you. You may reject those invoices. It will go to rejected in GSTR 2B. So you'd be knowing what all you have rejected and you have not availed. Credit is not available on same. Third is the pending one. So pending I have explained. Once you take action pending, so it will be kept pending and will flow to the subsequent tax period till the time you take action, accept or reject. The last one, it is no action. It is again an action that you're not taking any action. In case of no action, then all the transaction will be deemed as accepted. And auto generation, your draft GSTR 2B will get generated on 14th of next month, जैसा कि आज की डेट में होता है। और फिर देन आप अपने 2B से जो भी एक्टिविटी आप करते थे क्रेडिट अवेलमेंट का GSTR 3B में, वो सारी एक्टिविटी एज इट इज आप करेंगे। सो यानी शुरू में अगर आपको चैलेंज है तो मे बी यू कैन कीप, कोई एक्शन नहीं लेना एंड डीम्ड एक्सेप्टेड, देन आपका 2B जनरेट हुआ, डिपेंडिंग ऑन 2B यू वर्क आउट द क्रेडिट अवेलमेंट, एलिजिबल, इनएलिजिबल, or you're reversing which you will claim later. So those transactions which you're doing now, you will continue to do that in future as well. So this is one. So the answer, what about GSTR 2A? We are talking about 2B. 2B is important for availing credit from 1st January 2022. What about GSTR 2A? It will come as it is. For your all guiding purpose, it will flow auto-populated as it is being done today. Now, can you download all the data available in IMS? If you are a large company or foreign MNC, you must be having large volume of invoices coming from your supplier. So it is very much difficult for you to take action individually invoice-wise. So this question was asked, and through a FAQ, frequently asked question, it is being answered by GSTN that yes, you can download all the data in Excel facility, and then you can take the needful action. Will RCM document received from registered supplier also form part of IMS? Though I've given the answer, but still repeating that RCM transaction invoice
because invoice raised by registered supplier but subject to RCM will not flow to your IMS. Having said that, can you take action multiple times on a document? It is very interesting. You must listen very carefully. And I'm giving you the example, and I will also tell you that generation of 2B, how it is getting impacted. Listen very carefully. Let's say your supplier has a file 3B, which he's filing on 20th, right? Any taxpayer. But one he's filing on 11th of next month. So once he filed one on 11th, your 2B gets generated, auto-generated on 14th of that next month. So being recipient, you will see all such invoices. Even before filing one, if it is being saved, you can see on IMS. यानी आपके IMS पे अगर उसने सेव किया है तो वो दिखेगा and you can take action. और वो वन फाइल कर रहा है 11th of next month. तो समझने के लिए समझिए, मान लीजिए जब उसने सेव किया और सेव किया 9th, एज्यूम कर लेते हैं 9th of next month, तो आपको IMS पे दिखेगा. आपने एक्शन ले लिया, कोई भी एक्शन ले लिया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कोई एक्शन ले लिया आपने. लेकिन जब वन उसने भरा 11 को, मान लीजिए उस इनवॉइस को उसने चेंज कर दिया, आपने रिजेक्ट किया था. इसको समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, जब उसने इनवॉइस 9th को डाला था तो उसमें कुछ गलती थी, तो आपने रिजेक्ट कर दिया. सप्लायर को मालूम पड़ गया कि मैंने गलती कर दी है, तो उसने करेक्ट कर दिया. और 11 को जब उसने GSTR 1 फाइल किया तो करेक्ट इनवॉइस आपको फिर से आपके IMS पे दिखेगी. तो आप क्या फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे. और एक्सेप्ट करते ही एक्सेप्टेड इनवॉइस 2B में फ्लो करेगा, एलिजिबल क्रेडिट फ्लो करेगी जो आपके 3B में जाएगी. और जो लास्ट एक्टिविटी, लास्ट एक्शन होगा वही आपको IMS पे दिखेगा. यानी पुरानी अगर कोई एक्टिविटी है उस पे आपने कोई सब्सिक्वेंट एक्शन लिया तो सब्सिक्वेंट एक्शन आपका प्रिवेल करेगा टिल द टाइम आपने 3B अपना उस मंथ का फाइल नहीं किया. जब 3B आप फाइल कर रहे हैं और आपके एक्शन के बेसिस पे आपकी 3B की क्रेडिट फ्रीज हो गई, उसके बाद वो आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते. दिस इज व्हाट इट इज बीइंग एक्सप्लेन. ना एक एग्जांपल और लूं जिससे और क्लैरिटी इमर्ज हो. देखिए, मान लीजिए आपके सप्लायर ने 11 को GSTR 1 भरा. अब हो सकता है उस इनवॉइस में उसने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट किया उसने 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, एज्यूम कर लेते एक बार के लिए. तो 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो 2B जनरेट हुआ था उसमें तो वो आया नहीं. 15th को उसने अमेंड किया है और वो कर सकता है टिल द टाइम फाइलिंग 3B. यही प्रोविजन है, टिल द टाइम फाइलिंग 3B. उसने 15 को अमेंड किया तो आपके लिए क्रेडिट फ्लो कर गई GSTR 2B ऑफ नेक्स्ट मंथ. लेकिन मैं अब आपको एक चीज समझाऊं. अगर ये इनवॉइस आपके IMS पे है जो 15th को डाला गया है, आप अपना 3B 20 को भर रहे हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक करेक्ट इनवॉइस है, तो आपको अपना 2B रिकंप्यूट करना पड़ेगा, क्रेडिट को रिकंप्यूट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग 3B. एंड ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी जिससे आपको उसी मंथ में क्रेडिट मिल जाएगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. गोइंग फर्दर, अब प्रोसीजर क्या रहेगा? आप IMS कहां देखेंगे और आप कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे IMS पे जो एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग एक्शन लेने हैं वो कैसे लूंगा मैं? तो सबसे पहले आप GST पोर्टल पे जाएंगे, www.gst.gov.in, उस पे जाइए. आप सर्विस जो ऊपर में लिंक होती है, सर्विस डैशबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, फिर रिटर्न सेलेक्ट कीजिए, फिर वहां पे आपको दिखेगा IMS ऑप्शन. जब आप IMS ऑप्शन पे जाएंगे वहां पे देन सारी इनवॉइसेस आपको दिखेंगी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. और फिर देन आप एक्शन लेंगे, आइदर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग,
और नो एक्शन विच इज डीम्ड एक्सेप्टेंस, दिस इज व्हाट। तो आप ये पोर्टल पे जाके आईएमएस ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है। आफ्टर सेइंग दैट, नाउ अब आपको क्या करना है? एक तो पोर्टल पे जाके आपको हैंड होल्डिंग, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है कि आईएमएस वर्क कैसे करेगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन इट इज क्वाइट ऑब्वियस इन टाइम टू कम इसको कंपलसरी किया जाएगा। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप जाके उस आईएमएस विंडो को देखिए, इनवॉइसेस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, जिससे आप इससे यूज टू हो जाए। तो अब आपको करना क्या, आपने सप्लायर से कोऑर्डिनेट करना है कि वो टाइमली अपनी इनवॉइसेस या तो सेव ऑप्शन में डाले, या जब GSTR1 फाइल करेगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फाइल करेगा, या 1A फाइल करेगा, तो बिंग रिसिपिएंट मुझे IMS डैशबोर्ड पे दिखेगा, तो टाइमली डाले। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। आपको अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फॉर इफिशिएंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। कई इफ एंड बट्स हैं, मैंने कोशिश की है ईच करने की, बट देयर आर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स। सो आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे इफ एंड बट्स डाल सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो गोइंग टू बी वॉच बाय even government officials. So your any comment where you are finding challenge must be written in a comment box. आप जरूर डालिए, जिससे we will have and in time to come हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे और उनके आंसर भी करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, डेफिनेटली we will upload these question to GSTN for their reply and their response. अब लार्ज कंपनी है, वो एक एक ट्रांजेक्शन पे टिक करना, एक्सेप्ट रिजेक्ट, क्वाइट नॉट पॉसिबल। सो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इन्होंने कहा कि आप डाउनलोड कर लेंगे डेटा, लेकिन डाउनलोड करने के बाद जब मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा, तो वो कैसे इंटीग्रेट करूंगा? मेरा ERP विद GSTN, लाइक एक जेसन फाइल का कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं, राइट? हमने डाउनलोड किया, जेसन में कन्वर्ट किया, अपलोड कर दिया, मेरा ट्रांजेक्शन अपलोड हो गया। क्या इस तरह का इंटीग्रेशन अवेलेबल होगा? क्या मेरा सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ? ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। आपको रेगुलरली इनवॉइसेस रिव्यू करने, उनका स्टेटस देखना है, अपडेट देखना है। मान लीजिए अगर कोई इनवॉइस आपने डाला और फॉर सम रीजन आपके रिसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिंग सप्लायर कि आप उस इनवॉइस को करेक्ट करें, अमेंड करें। सो ये सारी चीजें, स्टेटस आपको चेक करने हैं, एक्शन लीजिए। या मैंने आपको बताया शुरू में, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, नो एक्शन, दैट इज ऑल्सो परमिसेबल, और जैसे आप कर रहे हैं करते रहिए। डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, फिर 2B के जरिए आप अपने क्रेडिट को बाइफरकेट कीजिए, एलिजिबल, इनएलिजिबल, रिवर्सिंग, बट यू विल क्लेम इन फ्यूचर, जिस तरीके से आप करते हैं। बिकॉज टेबल 4A5 जो इंपॉर्टेंट होती है, टेबल 4B1, टेबल 4B2 ऑफ GSTR 3B, आप करते रहिए। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये कंपलसरी हो जाएगा, कंपलसरी होने की वजह और इंपॉर्टेंट, हमने पास में कई लिटिगेशन देखे हैं, और लिटिगेशन यही होते थे कि सप्लायर कई बार इनवॉइस नहीं चढ़ाता, वन फाइल किया और उसने इनवॉइस चढ़ाई नहीं आपकी, आपको IMS पे दिखेगा ही नहीं, तो आप कह पाएंगे ना मुझे इनवॉइस नहीं मिली। आज की डेट में GSTR1 सप्लायर ने भर दिया, लेकिन आपकी इनवॉइस उसने नहीं डाली इस वन में, बिंग रिसिपिएंट आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सो अगर आप इस IMS का फीचर देखें तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। यानी हमारे लिए चैलेंज होता था कि 1 भरा है सप्लायर ने, 3B भरा है सप्लायर ने, बट मेरी इनवॉइस उसने 1 में डाली है या नहीं डाली है मुझे नहीं मालूम पड़ता था। अब आपको और हमको बिंग रिसिपिएंट मालूम पड़ेगा, हमें यह भी मालूम पड़ेगा वो करेक्ट है या गलत है। अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। So this is going to be a good feature in time to come for proper reconciliation of ITC on the basis of invoice or debit note raised by the supplier. यानी ये जो प्रॉब्लम चल रही थी लिटिगेशन की, that will get diluted in time to come.
So strengthen the system, check and process rather than manual driven. यानी आप अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, सिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को देखिए कंपेटेबल है या नहीं है, जीएसटीएन से इंटीग्रेशन कैसे होगा, rather than doing manual efforts. This is what my suggestion to all of you. But coming to SME and MSME, बल्क इनवॉइसेस कैसे मैनेज होंगे, देखिए मैं आपको ये सारी बातें एसएमई एमएसएमई की भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ओपन इश्यूज आपके साथ डिस्कस कर लूं। लार्ज कंपनी जो फॉरेन एमएनसीज हैं या बड़ी कंपनियां जहां वॉल्यूमिनस डेटा है, उनके पास वॉल्यूमिनस इनवॉइसेस होंगी, वो कैसे मैनेज करेंगे? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ने कहा दे विल गिव द डाउनलोडिंग फैसिलिटी इन एक्सेल। उन्होंने कहा हम आपको सारा डेटा एक्सेल में डाउनलोड करके दे देंगे। एक्सेल में डाउनलोड करके आपने दे दिया, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, रेस्पेक्टिवली आपको इनवॉइस सेग्रीगेट करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट वाली एक कैटेगरी, रिजेक्ट वाली एक कैटेगरी, पेंडिंग वाली एक कैटेगरी, फिर इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मुझे इस इंटीग्रेशन के बारे में भी समझना है। तो मैं जीएसटीएन की टीम अगर मेरा इस वीडियो को वॉच कर रही है तो प्लीज वो हैंड होल्डिंग करें, इंटीग्रेशन होगा कैसे। आपने डाउनलोड दे दिया, अब मैं अपलोड करूंगा, वो अपलोड कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अदरवाइज इनने क्या कहा है कि मान लीजिए आप एसएमई और एमएसएमई हैं, आप आईएमएस ऑप्शन पे जाइए, आपको सारे इनवॉइस दिखेंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जीएसटीएन वाइज चेक कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं जिसको हम फिल्टर लगाना बोलते हैं, आप पीरियड वाइज चेक कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट वाइज भी आपको जैसे सहूलियत हो वो शॉर्टिंग के लिए आपको कई ऑप्शंस देंगे। उस ऑप्शन के बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आप सारे इनवॉइसेस एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, और जो रेडियो बटन ऊपर में होता है उसको टिक कर दीजिए, सारे इनवॉइस एक साथ टिक हो जाएंगे। लेकिन ये एक्शन आपको एक बार में वंस एट ए टाइम, एक्सेप्ट के लिए एक बार, रिजेक्ट के लिए एक बार, पेंडिंग के लिए एक बार, आप क्रॉस नहीं कर सकते कि एक ही विंडो पे एक्सेप्ट भी और रिजेक्ट भी, फिर तो आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आपको हैंड होल्डिंग आईएमएस पे जाके करनी पड़ेगी, जिससे आपको क्लैरिटी इमर्ज हो कि मुझे आईएमएस पे जाके अगर एक्शन लेना है एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग का तो मैं कैसे लूंगा। एसएमई एमएसएमई के लिए पोर्टल पे हैंड होल्डिंग होना बहुत जरूरी है। लार्ज कंपनी एंड फॉरेन एमएनसी के लिए इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, या जेसन फाइल का जो कॉन्सेप्ट है जो एमएसएमई भी फॉलो करती है, एसएमई भी फॉलो करती है, क्या उनके लिए ऐसी फैसिलिटी आ सकती है? सो दिस इज माय क्वेश्चन, दैट इज द रीजन मैंने कहा ये ओपन इशू है। हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। तो मैंने ये जो पीपीटी बनाई है, वॉट एवर पीपीटी आई हैव मेड फ्रॉम फर्स्ट एडवाइजरी, देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इनने डाले हैं, ड्राफ्ट मैनुअल दिया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का, उनको समराइज करते हुए मैंने ये पीपीटी आपके लिए बनाई है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। इस इस पीपीटी से मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, कैसे वर्क करेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वे फॉरवर्ड हमें क्या करना है। एंड क्वाइट ऑब्वियस थीम लाइन तो प्रॉपर रिकंसिलिएशन है, जो क्रेडिट रिसिपिएंट बायर ले रहा है उसको डिस्प्यूट ना किया जाए, क्योंकि वो प्रॉपरली रिकंसाइल करेगा विद द इनवॉइसेस डेबिट नोट जो फाइल किए गए हैं सप्लायर ने in GSTR1 or through invoice furnishing facility or GSTR1A. So there are a lot of things which we need to get prepared. It is optional as on date, but एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मैं रख देता हूं। ऑप्शनल है, लेकिन मान लीजिए रिसिपिएंट ने कोई एक्शन ले लिया, तो क्या सप्लायर के एंड पे वो ट्रांजेक्शन उसी तरीके से उसको, क्योंकि दो विंडो होंगी ना, रेसिपिएंट भी आईएमएस देख रहा है, सप्लायर भी आईएमएस देख रहा है। अगर रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया तो सप्लायर को दिखेगा, आपने कह दिया ऑप्शनल है, लेकिन अगर रेसिपिएंट ने मान लीजिए कोई एक्शन ले लिया तो क्या वो सप्लायर के एंड पे जाके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन को चेंज कर देगा? मुझे लगता है कि अगर पोर्टल पे आपने अगर लाइव कर दिया, इवन दो ऑप्शनल है, दैट इज माई कंसिडर्ड व्यू,
इवन दो ऑप्शनल है, लेकिन रिसिपिएंट ने अगर कोई एक्शन लिया तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके सप्लायर के कंपटीशन कैलकुलेशन पे भी इंपैक्ट करेगा। ऑप्शनल का मतलब ये होना चाहिए आप कुछ भी करें आपका इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शनल है, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप ऑटो मोड पे हैं जैसा आज की डेट में चल रहा है। लेकिन अगर रिसिपिएंट ने एक्शन ले लिया तो वो कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर के लिए उसका इंपैक्ट उसे दिखेगा और अकॉर्डिंगली उसे करेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज कमिंग आउट। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मे बी इसको थोड़ा टाइम दिया जाए हैंड होल्डिंग के लिए, जिसमें हम समझ पाए सीख पाए, क्योंकि इसमें हार्डली आपने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एडवाइजरी इशू की और विद इन 1 मंथ आपने ऑप्शनल करके इसको लॉन्च भी कर दिया। हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय सबमिशन टू द CBIC and GST Council would be at least give 6 months time to get familiar with this particular facility, and maybe it can be started from April 1, 2025. But good one, as I told you, कि सप्लायर 1 भर रहा है, उसने मेरी इनवॉइस चढ़ाई या नहीं चढ़ाई आपको दिखेगा। So from recipient perspective, it is very, very important, which will give proper reconciliation of ITC and all dispute pertaining to कि सप्लायर ने चढ़ाया नहीं चढ़ाया गलत चढ़ाया, सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। There are a lot of things which we need to carry on. So from my side, I have tried my best. Whatever document was available, we have prepared this PPT, and this video will help you to get it started today, October 1, 2024, on Invoice Management System. There are a lot of things which changing today in GST, and we are trying our best. So stay tuned. If you are on my YouTube channel, definitely yes, you will get notification. If you are not, get it subscribed so that you get all GST update on real-time basis. Thanks for watching. Thank you very much.